बिल्कुल, अगर अगर महायुति की सरकार नागपुर में अपना प्रदेश में आती है तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा अमित शाह जी ने भी बोला है। कैसा जो कमल है इसको अपने को लाना ही है ना। मोदी जी योगी जी जो है जो बटेंगे तो काटेंगे जो चीज़ है वो चीज़ लागू है भैया। किसको बांटेंगे किसको काटेंगे, क्या स्लोगन भी है कैसा है, बटेंगे जो काटेंगे। अपने हिंद में एकता नहीं है। अगर आप देख रहे हो अपने अपने की टांग खींचते हैं ना, अपने की टांग मत खींचो, है ना। भी आएंगे देवेंद्र फडणवीस। क्यों? हाँ, अभी ये लाडली बहन का ज्यादा ही चल रहा है। अच्छा अभी बहन को पैसे मिलेंगे तो वोट तो उन्हीं को देंगे ना, जाहिर सी बात है। अच्छा। Very interestingly, the photo of the candidate itself is missing. The candidate in Nagpur Southwest is Devendra Fadnavis himself, the Deputy Chief Minister of Maharashtra and the Home Minister of Maharashtra. Interestingly, I couldn't see Devendra Fadnavis on the hoardings, BJP hoardings in Nagpur Southwest of. तो उन्होंने दो पार्टी फोड़ दी, उसके भी उनपे कि ये खाली सत्ता के लिए उन्होंने दो पार्टी तोड़ दी और खाली उनको कुर्सी चाहिए थी तो वो विपक्ष में वापस आके बैठ गए। इन्होंने अपनी युति तोड़ के शिवसेना वालों ने राष्ट्रवादी और कांग्रेस वालों के साथ सरकार बनाई और बीजेपी वालों को बुरा लगा होगा, हर्ट हुए होंगे फडणवीस जी, तो इन्होंने उनकी दो पार्टियां तोड़ के अपनी सरकार बनाई। क्या बुरा किया? नाराजी याच्यासाठी आहे की त्यांनी जे वातावरण इकडे हे केलं तोडाताडीचं, पक्ष फोडाफोडीचं, त्याच्यामुळे त्यांना पसंती जसं कमी झाली आहे नागपूरकरांची। Hello and welcome to HW News English. I am Shubham Chauhan. I am currently standing in the second capital of Maharashtra, or the Orange City as they call it. That is the city of Nagpur, located in the Vidarbha region. Now, Nagpur has a lot of historical, political and cultural significance to it. For starters, this is the place where the headquarters of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, the RSS, which is the ideological parent of the Bharatiya Janata Party, their headquarters are located here. Diksha Bhumi, the place where Baba Saheb Ambedkar embraced Buddhism, this is the city where it is located. If you look at it in the current sort of political context, this is where Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari comes from. This has been his bastion for years now, and this is also the place where Deputy Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis comes from. In fact, this is also the place in Nagpur, if you look at Nagpur city and its surrounding areas, if you include that as well, it's also the place where Chandrasekhar Bawangule, who is the state president of the Bharatiya Janata Party, he too comes from Nagpur. Now, in the Vidhan Sabha elections, where in fact I am currently standing is an area called the Chhatrapati Square, and this falls under the Nagpur Southwest constituency. This is the constituency that is being represented by, like I said, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis. He's been an MLA from this constituency consecutively over the past few terms, and this time he faces his opponent from 2014 of the Congress. Two rivals that will face off against each other in the 2024 assembly elections as well. It will be a BJP versus Congress fight in this seat. So what we are essentially going to do is, of course, roam around the constituency, Nagpur Southwest constituency, speak to people, speak to them about Devendra Fadnavis, his performance and his work. What do they think of his performance and work, not only in Nagpur, but also the fact in context of whatever has happened in Maharashtra, especially in the last 5 years. So be it the infamous early morning swearing-ins, be it the splits in the Shiv Sena and the NCP, which many say was the brainchild or the mastermind of Devendra Fadnavis. What are the issues in Nagpur this time around? We can see a lot of hoardings in the city already of the Bharatiya Janata Party and the Congress as well. The Bharatiya Janata Party largely focusing on the developmental plank, on the fact that Nagpur and other cities, the major cities in Maharashtra, have got new airports, be it the Atal Setu in Mumbai or several other infrastructure projects. That has been the core focus of the hoardings and the advertisements put up here, besides of course the Ladli Bahin Yojana and the work that the Mahayuti Sarkar plans to do, Mahayuti government plans to do for the farmers. So that is effectively what we are trying to do today here in Nagpur. It's a weekday and we're heading towards the evening peak hours. So this is the time when we sort of walk around and speak to people to understand what is the condition this time. Because if you look at 2014-2019 results from Nagpur Southwest,
Devendra Fadnavis won the seat comfortably he garnered more than 1 lakh votes compared to his opponent from the Congress party 2014. The opponent that he's facing now in 2024 and the 2019 election of the Congress, they bagged less than 1 lakh votes, and Devendra Fadnavis won comfortably with bagging more than 50% of the votes that were polled. Is that condition or is that a scenario going to repeat itself, or should we expect a tougher fight given the political scenario of Maharashtra as it stands today? So without wasting any more time, let's get started. विधानसभा के इलेक्शन आ गए हैं वापस। हाँ नागपुर साउथ वेस्ट से खड़े हैं देवेंद्र फडणवीस एक और हाँ टर्म जी। के लिए। हाँ हाँ क्या लगता है इस बार क्या हवा चल रही है यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मुझे तो लगता है वही आएंगे देवेंद्र फडणवीस जी। क्यों? हाँ अभी ये लाडली बहन का ज्यादा ही चल रहा है। अच्छा अभी बहन को पैसे मिलेंगे तो वोट तो उन्हीं को देंगे ना, हाँ। जाहिर सी बात है। अच्छा, हाँ और कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम करे हुए हैं देवेंद्र जी ने जैसे कि आपको लगता है कि उन्हें एक और टर्म देना चाहिए? हाँ उन्हें काम तो अच्छा है उनका, जैसे हमारे इधर डेवलपमेंट भी अच्छा है, जैसे हमारे एरिया में वगैरह अच्छा है इतना, तो उनको ही वोट देंगे। देवेंद्र फडणवीस को बोलते हैं कि अभी दो साल 2.5 साल में सरकार तोड़ जोड़ करी है, वो सब के मास्टरमाइंड वही है, तो क्या लगता है ये उनको करना चाहिए? सही बात करी कि 2 पार्टी फोड़ दिए, नहीं 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 फिर उप मुख्यमंत्री हो गए नहीं सब नहीं, सत्ता के नहीं वो नहीं, वो तो जो पार्टी है वो एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी, वो तो उद्धव ठाकरे जी की वजह से ही ऐसा लगता है। फडणवीस जी ने नहीं फोड़ी वो। नहीं नहीं अच्छा, और राष्ट्रवादी भी शरद पवार और अजित पवार की वजह से फोड़ी। हाँ वो देखो वो कैसे, जैसे शरद पवार जी वो अपना जो वो रहता ना अपना ही चलाना हाँ है ना, बराबर। और वो उनके जो थे भतीजे थे उनको नहीं है, उनका जैसे उनके बारे में नहीं अच्छा लग रहा था जो उनके रूल्स है ये, इसलिए तो मेरे को नहीं लगता कि वो उनकी वजह से जीती होगी, लेकिन जो है वो सही है, तीनों साथ में है। तो एकनाथ शिंदे तो सभागृह में बोलले की सगळे मोठे कलाकार आहे, देवेंद्र फडणवीस को बोला सगळे मोठे कलाकार आहे, सगळं घडवणारे आहे, नहीं तो नहीं फिर नहीं ऐसा नहीं। नहीं, तो अभी देखो अभी इलेक्शन का टाइम है तो एक दूसरे के ऊपर वो डालेंगे, जो है ब्लेम तो एक दूसरे पे ही करेंगे ना, कोई भी पार्टी की तरफ से बोलो कि अपोजिट पार्टी भी बोलो तो वही रहेगा ना। मुख्यमंत्री कौन, देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे या अजित दादा? तब तो तीनों ही हैं तीन फिलहाल। तो एकनाथ शिंदे अच्छे लगते हैं। अच्छा, एकनाथ शिंदे। हाँ। क्यों एकनाथ शिंदे क्यों? ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही अच्छे लगते हैं? हाँ देवेंद्र फडणवीस जी भी अच्छे हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस जी तो पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर उनको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, हाँ। तो वो नहीं चाहिए? आपको लगता है कि उनको नहीं बनना चाहिए हाँ, मुख्यमंत्री? अब नागपुर से तो वो भी चलेंगे, अपने नागपुर के तो वो भी चलेंगे, अच्छा वो भी है। चलेंगे? हाँ अच्छा, तीनों में से कोई भी चले, लेकिन बीजेपी का चाहिए हमें बस। बीजेपी का चाहिए? हाँ। अच्छा, इलेक्शन में अच्छा काम करेगी सर, और इलेक्शन जीत भी जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। महायुति। क्यों? इसके पीछे रीज़न है सर, जैसे उन्होंने जो योजनाएं लागू की थी, जो पब्लिक रिलेटेड काम किए थे, और जो उन्होंने जिस तरह से विकास करना चाहिए था वो सारा जो काम है वो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने भी अच्छे किए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अच्छे किए हैं, और अजित पवार सर ने भी अच्छे किए हैं, तो ऐसा मुझे लगता है। देवेंद्र फडणवीस जी इस मतदार संघ से आते हैं, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? सर ये तो पक्ष नेतृत्व का सवाल रहता है। आप क्या सोचते हैं? मेरा तो पर्सनल थिंकिंग ये है सर, एज ए नागपुरियन, कि मैं तो चाहूँगा देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन मैं एकनाथ शिंदे के बारे में भी अपोजिशन में नहीं हूँ। अगर वो भी बनते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से आज महाराष्ट्र के लिए जो ज़रूरी है वो उन्होंने किया सर, महाराष्ट्र के लिए ज़रूरी है जो कि उन्होंने किया सर। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ सर कि ये सही है या गलत है, ये डिसीजन लेने वाला मैं कोई नहीं हूँ सर। मैं तो सिर्फ एक 5 साल के बाद बटन दबाने वाला एक स्टूपिड कॉमन मैन हूँ सर, तो मैं बटन दबा दूंगा सर। आता देवेंद्र फडणवीस येऊ शकतात, येऊ शकतात? येणारच, का बरं? बीजेपीचा आहे ना, बीजेपीचं येणारच ते। येणारच ते. तर इकडचे मुख्यमंत्री झाले, मुख्यमंत्री पण होते, आधी गृहमंत्री पण होतात. काय वाटतं तुम्हाला? काय परफॉर्मन्स चांगले होता? काय विषय तुम्हाला? नाही चांगला आहे ना, त्यांनी चांगलं काम केलं।
यावेळी मुख्यमंत्री कोण व्हावे, एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस? आता ते तर नाही सांगू शकत. तुम्हाला कोण हवे, एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस? मला तर देवेंद्र फडणवीसच पाहिजे. बरं, देवेंद्र फडणवीस पाहिजे. तर इकडे काय तुम्हाला काय स्थानिक मुद्दे काय वाटतं, काय असेल स्थानिक मुद्दे इकडे? आता ते तर मी सांगू नाही शकत ना, मी नाही सांगू शकत ना अनेक मुद्दे. आमदारांनी कसं काम केलं, काय काय कामं केली, काय तुम्हाला भरपूर कामं केलं आमच्या एरियामध्ये. काय काय कामं केली लक्ष? रोड आहे, टाकी आहे, भरपूर कामं केलं त्या एरियात. बेसा बेल तर रोडीमध्ये. नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही नागपूरवरून आहे. तुम्हाला काय वाटतं, विदर्भचा काय विकास झालाय या दोन्ही? भरपूर झालाय. काय विकास झाला? मेट्रो आली, एअरपोर्ट आलं, रोड आलं, पाण्याची टाकी आली, शिवर लाईन आली, भरपूर कामं झाली. 2.5 वर्षामध्ये खूप फोडाफोडीचं राजकारण झालं इकडे महाराष्ट्रामध्ये एकदम. आणि त्याचा देवेंद्र फडणवीसला ब्लेम करतात. तर तुम्हाला ते पटत आहे की फडणवीस हे सगळे मोठे कलाकार फडणवीस होते, शिवसेना फोडली मग राष्ट्रवादी? नाही, देवेंद्र फडणवीस चांगले मुख्यमंत्री आहे. पण ते आता उपमुख्यमंत्री होते ना? हो, आता होते, पण पूर्वी होते ना. नाही, पण हे 2022 मध्ये जे काय घडलं ते तुम्हाला मान्य आहे? मला पटत आहे ते. पटल म्हणजे जे लोकांना पटल ते मला पटल. आता लोकांना जे आहे त्यांच्यावर आहे ना, आपल्यावर काही नाही राहत. Now, one of the things I observed while I was walking around Nagpur Southwest constituency and I was speaking to people are these BJP hoardings. Now, if you look at these hoardings carefully, and we'll play that visual for you, you can see a big cutout of Prime Minister Modi. On the top left, you can see a cutout of Jai Prakash Nadda. Then there is Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Chandrasekhar Bawankule, Nitin Gadkari, of course, who hails from Nagpur. And then there is a message with it. So, in some places, they have advertised the Ladki Bahin, what they've done for farmers, what they plan to do, infrastructure development. Very interestingly, the photo of the candidate itself is missing. The candidate in Nagpur Southwest is Devendra Fadnavis himself, the Deputy Chief Minister of Maharashtra and the Home Minister of Maharashtra. I saw a handful of banners in this constituency, and we'll keep playing those visuals because it's at first it looked like a blip, that maybe it's an aberration, it could be a printing mistake, but interestingly I couldn't see Devendra Fadnavis on the hoardings, BJP hoardings in Nagpur Southwest. Of course, there saw some of the autos that carried stickers of Devendra Fadnavis in this constituency. But the big hoardings that are advertising the Vikas work, the Ladki Bahin, I couldn't see Mr. Fadnavis on any of those. But on the other hand, when I travel to other parts of Nagpur city, so now Nagpur South, Nagpur West, the other two constituencies, Nagpur Central, the other constituencies in the city, there you could see the Prime Minister's photo and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis' photo, and we'll play those visuals for you as well. So very interesting. Now, whether it's a deliberate strategy or is it a slip up or what it is, I couldn't really come to a solid conclusion on that. A BJP worker tells me that उनको प्रचार की क्या गरज है, which means that what is the need for Mr. Fadnavis to campaign because he's already so popular. And remember, this is considered to be one of the safe seats for the Bharatiya Janata Party and for Mr. Fadnavis himself. He was previously elected from Nagpur West, and then he shifted base to Nagpur Southwest, and he's been elected multiple times from that. Interestingly, two top BJP leaders who come from Nagpur, Gadkari and Fadnavis, only one of them is seen on the banner. That is Nitin Gadkari on the banners of the BJP in Nagpur Southwest. The candidate is not seen, but it is the big picture is that of the Prime Minister. And of course, one can get a sense that maybe it's a carefully thought out tactic to seek votes in the name of the Prime Minister, like we've seen in the case of other parties. Like if you see the one behind me, it says Naveen Vimantar, Navi Mumbai, Nagpur, Solapur, Punyala, Adhika Hawai Marg Mile Maharashtrala. And there is Bharatiya Janata Party Maharashtra, Mahayutila Matdan Kara आणि विजय करा. भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे. That is what they're essentially talking about. Airports, how cities like Nagpur, Solapur, Pune got new airports. They'll get more and of course if the BJP and the Mahayuti is elected to power. फडणवीस जी के टक्कर में नहीं है कोई. फडणवीस जी श्योर है वहाँ पे श्योर है. तो फिर इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? फिर एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस? क्या लगता है किसको बनना है? देखिए, मुख्यमंत्री अगर आप बोलते हैं तो बीजेपी ने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा लीडर जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी है.
कि सीटों के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की अगर सीट ज्यादा आती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेंगे तो एक्चुअली फडणवीस सर ही बनेंगे, उसमें तो कोई ये नहीं है। पिछली बार भी ज्यादा एमएलए थे, लेकिन वो तो सीएम का पद तो सीएम पद के लिए पिछले बार अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था कि सीएम पद के लिए पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी, इनके बीच में ये हुआ था, झगड़ा हुआ था कि वो बोल रहे कि हमें प्रॉमिस किया था बाद में नहीं दिया, और फिर उनको दिखाने के लिए उनकी पार्टी फोड़ के बीजेपी ने शिवसेना को बोलते हैं इतने फोड़ने के बाद में एकनाथ शिंदे जी को बीजेपी पद ने सीएम पद दिया था। हो सकता है कहीं ना कहीं जनता को दिखाने के लिए भी हो सकता है कि भैया हम सीएम पद न्योछावर भी कर सकते, जरूर नहीं अपने पास। लेकिन अभी तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर हमारे पार्टी चुन के आती है तो हमारा लीडर जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी रहेंगे, और उसके पहले ये भी डिक्लेयर किए कि हमारा फिक्स हो चुका है जिसकी ज्यादा सीटें रहेंगे उनका सीएम रहेगा। इधर करीबन 4-5 टर्म से वो आमदार रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा देखता है आमदार की तरफ? 5 टर्म यहाँ पे उन्होंने, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है देवेंद्र फडणवीस जी का, ऑल ओवर क्या काम किए? डेवलपमेंट जैसा बोलते हैं आप, जैसा नितिन गडकरी जी के सपोर्ट में लेके, और नितिन गडकरी जी ने तो किया ही है, लेकिन फडणवीस जी जैसा उप मुख्यमंत्री रहने के बाद में यहाँ पे बहुत से ऐसे कुछ है, जैसा क्रीडा संकुल हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, या कोई योजना हो गया, वो उन्होंने बहुत चला है, वो हिसाब से उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। बट कैसा है, जो कमल है इसको अपने को लाना ही है ना। मोदी जी योगी जी जो है, जो बटेंगे तो कटेंगे जो चीज है वो चीज लागू है भैया। किसको बांटेंगे किसको काटेंगे, क्या स्लोगन भैया कैसा है, बटेंगे जो कटेंगे। अपने हिंद में एकता नहीं है। अगर आप देख रहे हो अपने अपने की टांग खींचते हैं ना, अपने की टांग मत खींचो, है ना। अपने की टांग अपन खींच रहे हैं, एक में क्या अपनी जो जातिवाद कर रहे हैं अपन, कोई मतलब मीनिंग नहीं है, सब एक ही है अपन। तो बटना नहीं अपने को, साथ में मिलकर एकजुट के राष्ट्र बनाना है ना। कौन काटेगा ये हाँ क्या हिंदू राष्ट्र बनाना है भैया। हिंदू राष्ट्र बोलता ऐसा कुछ नहीं कि अदर जात वाले गलत है, गलत नहीं है भैया, पर जो अपन दबते जा रहे हैं, नहीं समझे? कौन दबा रहा है? अब दबा रहा कौन है भैया? आपका दबते जा रहे हैं बट अपन, है ना। ये आपको भी पता है, मेरे को पता है कैसा है सोशल मीडिया, जो भी है सबको पता है क्या हो रहा है ना। तो वो चीज अपने को चुन के लाना है, बीजेपी को ही लाना है भैया। बढ़िया। अगर जैसे कहीं बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व पे या मुसलमानों के अगेंस्ट ऐसे कमेंट्स कई बार करते हैं, तो मुसलमान खराब नहीं है, अपन बोलते हैं मुसलमान खराब है, कुछ मुसलमानों के सबका नाम खराब है भैया, है ना। आज हम बोलते हैं ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मोमेडियन, वो हमारे मंदिर में आते हैं, हम उनके मस्जिद में आते हैं, सब एकता है भैया। ये जो पार्टी है जो एक में को अलग कर रही है, अलग नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता। उनका भी ब्लड लाल है, हमारा भी लाल है ना, अलग नहीं है अपन, सब एक ही है। सिर्फ साथ में लेके चलो, देश को लेके चलो, ये मेरा बोलना है। क्या है कि इंडिया में एक पॉलिटिकल कल्चर नाम का कुछ टर्म है। अब पॉलिटिकल कल्चर, इन्होंने अपनी युति तोड़ के शिवसेना वालों ने राष्ट्रवादी और कांग्रेस वालों के साथ सरकार बनाई, और बीजेपी वालों को बुरा लगा होगा, हर्ट हुए होंगे फडणवीस जी, तो इन्होंने उनकी 2 पार्टियां तोड़ के अपनी सरकार बनाई। क्या बुरा किया? वो सही लगा आपको? नहीं, सही तो नहीं लगा, पार्टी तोड़ के या ईडी के केसेस से वो सारे एक तरफ आ गए बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री ने जिनको भ्रष्ट बोला, वो ये तो नैतिकता की लड़ाई है, नैतिकता से लड़नी चाहिए। फिर इन्हीं लोगों ने उनको टिकट दिया, ये बीजेपी का गलत हुआ ना। ये बीजेपी का गलत हुआ कि बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि उन्होंने सरकार तोड़ी, और गलत भी बोल सकते हैं इसलिए कि इन्होंने उन्हीं लोगों को चांस दिया अपने मंत्रालय में, अपने मिनिस्ट्री में। बट प्रधानमंत्री जिस पक्ष को बोलते हैं कि ये भ्रष्ट पार्टी है एनसीपी, उसका एक गठ लेके उनको सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री पद दे दिए, तो वो सही है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अजित पवार के ऊपर अगर 70,000 कोटी के आरोप है तो उनको सरकार में नहीं लेना चाहिए था, उनकी और इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और जो भी मामला आगे आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, या क्लीन चिट मिल गई रही थी अगर नहीं रहता कुछ तो। एकनाथ शिंदे ने सभागृह में बोला था कि सगळे मोठे कलाकार है, फडणवीस जी को बोला था। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो लास्ट 2-2.5 साल में जो जोड़ तोड़ का हुआ है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार, ऐसा लगता है क्या? जिम्मेदार नहीं, वही एक्टिव थे 2-2.5 साल। उनको एक तजुर्बा था, इतने साल का उनका एक्सपीरियंस है, संगठन में उनकी उतनी बड़ी ताकत है, तो उन्होंने जो पराक्रम किया है पॉलिटिक्स के अंदर महाराष्ट्र के अंदर में, तो वो एक तो है, वो मानना पड़ेगा कि उन्होंने हलचल बहुत ज्यादा किया है। बीजेपी कहती है बटेंगे तो कटेंगे, तो ये हिंदुत्व का मुद्दा क्या है? मतलब किसको बचाना है क्या? योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आए, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि
मतलब क्या कटेंगे तो कटेंगे हाँ। तो उसको हम पॉजिटिव से लेना चाहिए कि पॉजिटिव तरीके से लेना कैसे लेना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग अभी किस नजरिए से देश को देखना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिशा दी है, डायरेक्शन दिया है कि कैसे देश चलना चाहिए। तो सब लोगों ने एक होकर जो आदमी अच्छा हो, जैसे कि किसी ने भी बोला नहीं है कि हमारा ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा, लेकिन अगर सरकार हमको अच्छी चलानी है तो एक संवेदनशील चेहरा महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर कर कोई सरकार चलाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि देश अच्छी तरीके से चल पाएगा। नहीं, बट किसको जोड़ने की बात और किसको काटने की बात? उन्होंने धार्मिकता या सामाजिक मतलब क्या बोलेंगे उसको, सामाजिक जोड़ तोड़ के बारे में उन्होंने बोला कि हिंदू लोगों ने एक होना चाहिए, जोड़ तोड़ की इसमें टूटेंगे मतलब बटेंगे तो टूटेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि सभी महाराष्ट्र के मराठी जो लोग हैं अगर वो साथ में रहेंगे तो एक साथ सरकार एक ही ला पाएंगे। अच्छा, तो हाँ। ये कोई दूसरे धर्म को टारगेट करने के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं कि उनका इंटेंशन था वैसा, कि सभी हिंदुओं ने एक होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदू ही नहीं रहते ना, बाकी लोग बाकी धर्म के भी लोग रहते, तो उन्होंने आपको लगता है ये वोटर नकार देंगे, बटेंगे कटेंगे, जो ऐसे ये कम्युनल चीजें बोलते हैं जो आपको लगता है महाराष्ट्र की जनता नकार लेगी? ये शाहू फुले अम्बेडकर का लैंड है, ये बिल्कुल है। शाहू फुले अम्बेडकर का ये लैंड है। तो यहाँ के सभी लोग, सभी धर्म पंथ के सभी लोग एक रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं कटेंगे और एक की सरकार देखेंगे तो इस तरीके का वो आपको दिखेगा। love and war. So I will add a politics. Everything is fair in love, war, and politics. People may not individually like it, but then that's politics. What do you make of it personally? Do you think that was right to sort of split two parties and then form a government and then become the deputy chief minister? Does it send out the right message that their politicians? So, in my personal opinion, you say that he has split the party from Shiv Sena, but there was already a defection existing in Shiv Sena. So, किसी भी चीज को हवा देने की जरूरत है। हवा मिल गई तो आग पकड़ ली, आग तो थी ही पहले, फडणवीस ने दे दी, हो सकता है। How big an issue is Hindutva when it comes to the election? We're seeing the Prime Minister and other top leaders saying batenge to katenge. Do you think that these kind of statements are sending out the right message to the electorate when they say batenge to katenge and they're saying ek hai to safe hai? What kind of message do you think it sends out to the electorate? I think that's very essential. That's very essential and has been done. I think that's a good tagline because Hindus, this land belongs to Hindus. So Hindus, if you try to distribute and divide them, then I think 57 countries, we know what happened. How they have become Islamic states. It's very known to the world. So probably they have the same agenda to do it here. So what is wrong in that? When they can unite, why we can't? And why we shouldn't? But then should politicians divide people on the basis of religion? Does it target a particular community in your opinion, or is it right to do it just for votes? Or do you think there are other pressing issues that the politicians should really seek votes on? See, politics is something like that, if you have to be relevant, if you do a wrong thing, I will also do a wrong thing. Right. That's what it is. Who started is a different thing. That's a matter of investigation. So, उसने किया तो मैंने भी करना ही है. That becomes inevitable. If you are consolidating a particular religion, I will name it Muslim religion votes. Why Hindus should not consolidate their votes? What is wrong in that? If you do it, that's right. If I do it, then it's wrong. This is hypocrisy. त्यांच्या दावणीला काँग्रेसचे प्रफुल्ल पाटील आहेत ना, गुळदे पाटील, हा, तर ते प्रति जे आहे ते पण व्यवस्थित आहेत. पण तुम्हाला काय वाटतं इकडे स्थानिक मुद्दे काय असणार आहे या निवडणुकीमध्ये? स्थानिक मुद्दे म्हणजे बेरोजगारी खूप आहे ना, बेरोजगारी पुष्कळ आहे आणि बेरोजगारी असून तरुणांना काम नाही. काही प्रकल्प गुजरातले गेले म्हणतात, इथले बुट्टीबोरीतले वगैरे, त्याच्यामुळे अर्ध होऊ शकते. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले, राज्याचे गृहमंत्री होते, पहिले मुख्यमंत्री होते. हे काही जोडतोडचं राजकारण झालंय 2.5 वर्षामध्ये, त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? त्यांनी जोडतोड पुष्कळ केली आहे, पक्ष तोडले पुष्कळ आपल्या याच्यासाठी. पण त्याच्यामध्ये असं आहे की त्यांना जे वाटून राहिलं की मी मुख्यमंत्री झालो, हे ते झालो, पण आता नागपूरची त्यांच्याविषयी नाराजी आहे थोडी.
नाराजी याच्यासाठी आहे की त्यांनी जे वातावरण इकडे हे केलं तोडाताडीचं, पक्ष फोडाफोडीचं, त्याच्यामुळे त्यांना पसंती जसं कमी झाली आहे नागपूरकरांची. तुम्हाला काय वाटतंय यावेळी महायुती की महाविकास आघाडी कोणी सरकार स्थापन करेल? सरकार स्थापन तर आता तसं काही सांगू शकत नाही. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला कोण मत महायुती की ईव्हीएम मध्ये काही गडबड झाली तर काय सांगणार आपण? ईव्हीएम मध्ये गडबड झाली तर आपण कोणावर आपण हे करू की महायुती येणार की महाविकास आघाडी येणार? असं आहे ना ते. तुम्हाला काय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री व्हावे तुम्हाला अशी इच्छा आहे की काय? नाही आता नाही, आता मुख्यमंत्री नाही, दुसरे पाहिजे. एकनाथ शिंदे चालल तो उद्धव ठाकरे चालव. So that is what the voters of Nagpur had to say, satisfied with the work of Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. Some of the issues that are on their minds, first is of course the Hindutva plank of the BJP, the "Batenge to Katenge" slogan, and "Ek hai to safe hai" is something that people are talking about on ground here in Nagpur. And on the second bit, if you ask them about what Maharashtra has seen in the last 2.5 years and what Fadnavis has been accused of doing, splitting two parties, Shiv Sena first and then the NCP, coming to power, defections and the jod tod ka politics. People here defend it by saying that everything is fair in love and war and politics. The third bit is what they add. And of course then the other feedback that you get, which is on expected lines, the common feedback of people across age groups, caste and gender, is that the fact that the jodi of the two top BJP leaders from Nagpur, Nitin Gadkari and Devendra Fadnavis, their names are almost synonymous with development. They believe that these two men have ensured that Nagpur gets the development and the facilities it needs, including the metro that you can see behind me in the city of Nagpur. The highway man of India, as Mr. Gadkari is called. They've hailed him for the expressways and the highways that he's built, including the Samruddhi Mahamarg that starts from Nagpur and goes all the way up to Mumbai. On the Chief Minister's face, some say they are happy with Mr. Eknath Shinde, while some say this is the time for Mr. Devendra Fadnavis to get on and get that Chief Minister chair come the 23rd of November if the BJP and the Mahayuti comes to power. And with that, we end our travel for the Maharashtra election 2024. It's been a wonderful few weeks where our small team has been able to crisscross and cover as many parts of Maharashtra as we could, from Konkan to all the way up to Vidarbha to Nashik to Baramati, the key constituencies, the key battles. And like we've been saying from day one, the endeavor has been to get you voice from the ground. What do the people of Maharashtra have to say on several issues? What do the farmers have to say? What do women have to say? What do the working class, what do the middle class have to say when it comes to the Maharashtra elections? And all of this has been only possible thanks to you, the viewers, who supported our endeavor, who contributed to our project and ensured that we get the funds that we need to travel and get you these stories from ground. So we hope you enjoyed watching our coverage as much as we did bringing it to you. And for more such videos on politics, on not just Maharashtra politics but national politics at large, do subscribe to HW News English, support independent journalism, spread the word around, and thank you so much for contributing to this small venture of ours. We hope we lived up to your expectations. This is Shubham Chauhan reporting for HW News. Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.